بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت میں موجود ہوں F9 پارک اسلام آباد میں، جہاں ملک بھر سے کسان بڑی تعداد میں اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان سے ان کے کیا مطالبات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے لاہور کے اندر وکلاء کنونشن سے انتہائی عام خطاب کیا ہے اور ہفتے سے تحریک کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے کسانوں کو ایک بڑی دھمکی لگائی ہے، اس پر بھی بات ہوگی اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، آپ دیکھ چکے ہیں کہ عام آدمی مہنگائی کی چکی کے اندر پس چکا ہے۔ پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوا ہے، اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہر کمیونٹی اپنے طور پر احتجاج کر رہی ہے۔ آج عمران خان صاحب نے بھی اپنی تحریک کا آغاز کر دیا ہے اور اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ یہ جس طریقے سے دھمکیاں دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، حقیقی آزادی کے لیے میرے ساتھ وکلاء نے بھی نکلنا ہے۔ آج یہ انتہائی عام وکلاء کنونشن تھا، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ IMF اور ورلڈ بینک کے کس طرح پاکستان غلام بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو پہلے آزادی کی طرف بڑھ رہی تھی، اب غلامی کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس وقت شہباز شریف جو ہے، ان کی کیبنٹ کے 72 اراکین ہو چکے ہیں۔ ایک طرف زہر کھانے کے پیسے نہیں ہے، اور دوسری طرف جو عیاشیاں ہیں ان کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز جو ہے وہ مہنگے ترین ہوٹلوں کے اندر ان کا نیو یارک کے اندر قیام ہو، یا پاکستان کے اندر جو ہے بے محکمہ وزیروں کی بھرمار ہو۔ تو پاکستانی قوم یہ پوچھ رہی ہے کہ یہ عیاشیاں جو آپ کر رہے ہیں، تو بالآخر آپ کا ایجنڈا کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں، اور کس حد تک یہ معاملات کو لے جانا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج کہا کہ مہنگائی آسمانوں پر جا رہی ہے، اور پاکستان میں 50 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی آج ہے۔ قوم کو قانون کی بالادستی کی ضرورت ہے، اور معیشت کو بہتر کرنے کی ہمیں انتہائی ضرورت ہے۔ مغربی ممالک میں قبضہ گروپ نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر اپنے کیسز کو چونکہ معاف کروانا تھا، NRO2 لینا تھا، نیب کے اندر بڑی ترامیم کی گئی ہیں، جس کے ذریعے اب تمام چور ڈاکو لٹیرے جو اس قوم پر مسلط ہوئے، اب وہ مکمل طور پر آزاد ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ عام آدمی جو ہے وہ پس گیا ہے۔ آج پاکستان کے جو کسان ہیں وہ F9 پارک کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری زرعی اجناس جو یہاں پر فوڈ سیکیورٹی کا آنے والے وقت کے اندر پاکستان کے اندر ایک بڑا کرائسس آ رہا ہے۔ سیلاب کے اندر آج جو چوتھا حصہ ہے پاکستان کا، وہ اس وقت ڈوبا ہوا ہے۔ وہاں پر بھی آگے گندم کی کاشت ہونی ہے۔ اس وقت چاول کی فصل جو ہے وہ اتنی مہنگی اس کی کاشت ہے، اتنی زیادہ لاگت ہے فی ایکڑ، کہ وہ کسان کے بس سے معاملات باہر ہو گئے ہیں۔ آپ اگر بجلی کی طرف آئیں گے تو ان کی نرخوں کے اندر جہاں پر 5-6 روپے یونٹ ہوتے تھے کسانوں کے لیے، اب وہ 36 روپے یونٹ تک پہنچ چکا ہے۔ اور دوسری طرف جو آئل پرائسز ہیں ان کے اندر اضافہ اتنا ہو چکا ہے کہ اب چاول کی فصل بھی اٹھانا ان کے لیے مشکل ہے۔ اور آگے جب گندم کی بوائی ہوگی، اسی طرح کپاس ہے، اسی طرح مکئی ہے، جو علاقے ہیں، ہم نے یہاں پر مختلف لوگوں سے بات کی ہے، اور جو ساری بات ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، روک دیں تو یہ اس وقت کسانوں کے حالات جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی F9 پارک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا یہ عالم ہے کہ بجلی جا چکی ہے، اور شاید جو ابھی اسلام آباد پولیس نے ایک بڑی عجیب دھمکی بھرا ٹویٹ کیا ہے، وہ لوگ جو یہاں پر پرامن آئے ہیں، ان کے کسان رہنما جو ہیں، وہ اس وقت تقریباً 3-4 گھنٹے سے اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ تمام ٹی وی چینلز پر اس وقت کسانوں کی آواز کو دبایا گیا ہے، بلیک آؤٹ کیا گیا ہے۔ کوئی ٹی وی چینل بول نیوز کے علاوہ اس وقت کسانوں کی آواز کو عوام تک پہنچا نہیں رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کی وہ پھرتیاں کہ کسانوں کو الٹا تشدد کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ابھی جو ٹویٹ کیا گیا ہے اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ احتجاج میں شامل افراد درختوں کو توڑ رہے ہیں، ان کا تشدد کا ارادہ ہے۔ کسی بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی قیدی وینیں بھی منگوا لی گئی ہیں۔ پولیس اور انتظامیہ مظاہرین سے تحمل سے کام لے۔ اب یہاں پر ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ان پرامن کسانوں کو جن کی آواز جو ہے وہ یہاں پر پہنچانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں،
और फिर फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं पाकिस्तान को। आगे आपने तो कमीशन खाना है। जब गंदम आप इंपोर्ट करेंगे, चावल इंपोर्ट करेंगे, दीगर चीजें इंपोर्ट करेंगे, तो आपने तो इसके अंदर कमीशन खाना होता है। और शायद आप चाहती यही है ये हुकूमत कि ये किसान जो है वो कम उगाएं ताकि बाहर से मंगवाएंगे, सस्ते दामों मंगवा कर महंगे दामों यहाँ आवाम को बेचेंगे। तो ये सारा जो खेल है वो हो रहा है। लेकिन पुरअमन कोशिश के बावजूद यहाँ पूरे दिन से ये लोग बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो दिन दिहाड़े और रात की तारीकी के अंदर सांपों के सामने खड़े होते हैं जब पानी लगा रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जब खाद जो है वो खाद आपने इतनी महंगी कर दी है उसका ये एहतजाज कर रहे हैं। मुतालबा यही कर रहे हैं कि जब हमारी अशिया जो हम आपको फरोख्त कर रहे हैं, वो आटा हो, चावल हो, मकई हो, कपास हो, वो आप सस्ते दामों लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई का रोना भी रोते हैं। तो हमारी जो फी एकड़ पैदावार है उसके अंदर मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत को जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर किसानों को रिलीफ दिया जाता है, किसानों के सब्सिडी दी जाती है, हमें भी सब्सिडी दी जाए, लेकिन ये काम जो है वो यहाँ पर करने की बजाय उल्टा इस्लामाबाद पुलिस जो है यहाँ पुरअमन मुजाहिरीन जो इस वक्त F9 पार्क के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पर इनको धमकियां दी जा रही हैं। मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई अजीब सूरत हाल है। एक तरफ इमरान खान की हफ्ते को तहरीक का आगाज हो रहा है और इस वक्त डी चौक के ऊपर पूरा इस तरह लग रहा है खंदकें जैसे खोदी जा रही हैं, कंटेनर लगा दिए गए हैं, बख्तरबंद गाड़ियां और प्रिजनर वैन्स वो चलाई गई हैं। तो ये सारा कुछ किस तरीके से यानी शो करना चाहते हैं? आप जो शेल आपने खरीदे हैं वो आप किसानों पर टेस्ट करना चाहते हैं? राना सनाउल्लाह जैसा शख्स इस वक्त जो मुल्क का वजीर दाखिला है, यकीनी तौर पर पाकिस्तानी जो अवाम है उनके लिए बहुत खतरे की बात है। हम चंद दोस्तों से जो यहाँ पर आए हैं उनसे बात भी करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो कि ये लोग कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, इनका मकसद क्या है। जी आप कहाँ से तशरीफ लाए? जी मैं मंडी बाबुद्दीन से। आप क्यों आए हैं, क्या मुतालबा है आपका? जी मुतालबा साडा है ये किसान दा ठीक है, महंगाई हो गई है, बिजली दे बिल ज्यादा आ गए ने, ठीक है, साडी कोई बिल्कुल गंदम जड़ी है उदा रेट कोई नहीं, ज्यादा जड़ा बिजली दा बिल जो घर दा है वो कम से कम थोड़ियां यूनिटां दा 30-35 हज़ार 40 हज़ार ते दूजा जरी जड़ियां मोटरां ने उन्हां दा बिल किसे 1.5 लाख, किसे 2 लाख, किसे 4 लाख जी इतना आया। ठीक है, असी सिर्फ इस तो आए हैं बस ही अपना हक है, कोई साडे नाल सियासी नहीं, सिर्फ असी आप आए हैं। ठीक है, किसान ताल ते हक वास्ते डी चौक ते असां जाना ही ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਾ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਰੜ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾ ਛੜਿਆ ਵਾ ਰਾਹ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਜਿਪ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਡੋ ਗੰਡਾ ਸੁਬਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਔਰ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ दिलदारी या किसी नाल बदतमीजी असां नहीं की। जी आप ये बताइएगा कि आप यहाँ पर आपका मुतालबा अगर हुकूमत पूरा नहीं करती तो आपका क्या जो है वो इरादा है? इंशाल्लाह जी हुकूमत क्या पूरे करेगी? गंदम हमसे 2200 खरीदी गई, अब 4400 में बिक रही है। इन लोगों को शर्म आती है? नहीं आती। ये गरीब का खून चूस रहे हैं, किसान का खून चूस रहे हैं। हमारे ऊपर जून मई और अप्रैल के FPA लगाएंगे। क्यों भाई? इनके बाप का राज है? क्यों भाई? क्यों जुल्म करते हैं? ये हमारा कत्ल कर रहे हैं, ये हमारी मईशत तबाह कर रहे हैं, ये हमारा मुल्क तबाह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या दुश्मनी है हमके साथ इनकी? क्यों करते हैं हमारे साथ ऐसे? इनके साथ हम वही खेल खेले। जब मंडियों में प्याज ना आए 500 रुपए किलो बिके, फिर ये लोग खुश होते हैं, फिर भी गरीब पिसता है। क्यों? ये हमारे वोटों के साथ खेल के अब MPA MNA कहाँ है? हमारे साथ तो कोई नहीं खड़ा। कोई MPA MNA खड़ा है? नहीं खड़ा। क्यों नहीं खड़ा? उन्होंने इक़्तिदार के मजे लेने, सिर्फ अवाम को जलील करना है। क्यों करना है? इनका खून चूसना है, टैक्स लगाना है, इनको रिलीफ नहीं देना। आम आदमी सिर्फ 20,000 कमाने वाला 15,000 टैक्स दे देता है, बिल में, साबुन में, सर्फ में, बिजली में, तेल में। क्या करे वो? 5,000 में कैसे घर चलाए, कैसे बच्चे पढ़ाए? इनके तो बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, किसी के इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, किसी के अमेरिका में पढ़ रहे हैं, किसी के चाइना में पढ़ रहे हैं। ये अनपढ़ लोग सवेरे सुबह के आए हुए, कहीं उधर रुकावट दे दी, कहीं इधर पुलिस ने रुकावट दी, सारा दिन भूखे। इधर तो वाशरूम भी नहीं, इतने बंदों के लिए वाशरूम कहाँ है? क्या इंतजाम है हमारे लिए?
ये तो असेंबलियों में बैठे हैं, इनके तो वोट वो असेंबलियों में होटल खोल लेते हैं। पंजाब में ऐसा नहीं हुआ, होटलों में वजीरों मुशीरों और एमपीए को रखा, इतना पैसा लुटाया। क्यों लुटाया? हमारे खून पसीने की कमाई से। वजह बताएं हमें। जी, आपका बिल्कुल सही मुतालबा है। अगर इस वक्त आपका चूंकि हुकूमत से मुज़ाकरात अब तक की इतलात के मुताबिक नाकाम हो गए हैं, तो अगर आप इधर ही बैठे रहते हैं, आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो आपका क्या जो है वो अज़ाइम है? इंशाल्लाह हम जिस वक्त तक हमारे ये मुतालबात नहीं मानेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। हम डी चौक पर भी जाएंगे, वहाँ पर धरना देंगे और वापस नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, जब तक ये हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं करेंगे। आपके मुतालबात बिजली के अलावा और हमारे जो मुतालबात है ना सर, खाद हमें महंगी, बिजली महंगी, हमें डीजल महंगा। इनको जो हमारा तो हुकूमत सांस वक्त लेना को भी कहना महंगा है हो ना, गया। वो ये है कि अगर ये बाहर से गंदम लेते हैं तो डॉलर देते हैं। अगर अब जो डीएपी का रेट है वो 14,500-15 हज़ार रुपया है। हुकूमत जो बाहर डॉलर देती है वो गवर्नमेंट को दो, उस किसान को देवे, किसान ਨੂੰ ਦੇਵੇ। अगर किसान एक बोरी पा सकता है, वो एक एकड़ ਨੂੰ 2 बोरियां पावे, ਜਿਹਦੇ ਤੇ गंदम ਦੀ पैदावार ਵਧੀ ਜਾਵੇ, पाकिस्तान फायदा होवे। आप कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ चिश्तियां से आए हैं जी। जी, आप बताइएगा कि आपके असल मुतालबात क्या हैं, और अगर यहाँ से आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो आप क्या वापस घरों को जा रहे हैं? सर हमारा तारक बिन ज़ियाद ने जिस तरह कश्तियाँ जलवाई थी ना, हम वो जला के आए हैं। वापसी का हमारा 1% भी इरादा नहीं है। हमारे मुतालबात जायज़ हैं। ये जो बैठे हुए हैं ना पुलिस ईवानों ने में, प्रिजनर वैन्स मंगवा ली हैं कि आपको गिरफ्तारियां भी यहाँ से हो सकती ये हैं। पुलिस ये ईवानों में जो बैठे हुए हैं, ये पब्लिक सर्वेंट है। कुछ भी नहीं कमा ये पब्लिक सर्वेंट है, ये हमारे लिए है, ये हमारा मुल्क है। क्या कायदे आज़म ने इसलिए मुल्क बनाया था कि ये हमारे साथ इस तरह करें? ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है पाकिस्तान में। इनको तो इस तरह की सब्सिडी देनी चाहिए कि हमारा किसान खुशहाल हो, ताकि मुल्क खुशहाल हो। ये कोई भी नहीं चाहता मुल्क की खुशहाली तरक्की। फिर जाना पड़ता है IMF के पास कर्ज़ों के लिए, दूसरे मालिक के आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। ये अपनी अवाम जब तक खुशहाल किसी मुल्क की नहीं होगी, ये कैसे रह सकते हैं इस तरह? जी, आप बताइए। जी, मेरा तल्लक मियाँ वाली से, मेरा नाम अनायतुल्लाह खान है जी। हम बिल्कुल मजबूर हो गए हैं, बिल्कुल मजबूर हो गए। 6-6 लाख बिल आ रहे हैं हमारे जेरी ट्यूबवेलों के, जो मोटर उठा रही है पानी 600 फुट से। 6-6 लाख बिल आ रहे हैं, हम बर्दाश्त से बाहर है। हमारे जी, इलाके में 300 घंटा का रेट है, 3000 फी घंटा। लोड शेडिंग ज्यादा है, मोटर के लोगों को जल गई हैं, कभी बिजली तेज कभी कम। सर पहली बात तो ये आपने कहा अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो हम क्या करेंगे। हम पहली बात है, जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तब तक हम यहाँ से हिलने वाले बिल्कुल नहीं है। सुबह से अभी तक हमारी तादाद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। दूसरी बात यह, अगर किसी किस्म का हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है या कोई इस तरह की उनकी प्लानिंग है तो उसके जवाब में हम किसान लोग हैं, हम घर बार अपने छोड़ आए हैं, माल मवेशी छोड़ आए हैं, हम यहाँ पे मरने के लिए आए हैं। जी, जिस तरह आप देख रहे हैं लोगों के जज्बात हैं, और ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो अवाम है वो इस तरीके से परेशान है, और इस वक्त जो किसानों की सूरत हाल है वो आपके सामने रखी है। जब आप किसान खुशहाल नहीं होगा तो फिर आपको सब्जियां भी महंगी मिलेंगी, फिर अनाज भी महंगा मिलेगा, और फिर ये शिकवे गिले शिकवे जो है वो मुनासिब नहीं है। लेकिन आखिर में ये साहब बात करना चाहते हैं, कहाँ से आए हैं? जी, मैं मंडी बावलदीन से हूँ, लेकिन मेरा फिश फार्म है सरगोदा में। जी जी। तो मैं सरगोदा से जो अभी आया हूँ नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ये मेरा बिल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मोबाइल में देखें, ये 2 बिल है मेरे। जी जी। ये 15 लाख के हैं। अच्छा, क्या किया आपने? बिजली इस्तेमाल ज्यादा किया? फिश फार्म नहीं, अच्छा। ये आम रूटीन में 2 लाख 2.5 लाख इतना आता है, लेकिन ये इस दफ़ा 15, पिछले 4 महीने से 7.5 से 8 लाख में पे कर रहा हूँ। तो आपको कोई फायदा तो होगा? फायदा क्या है, क्या फायदा? अभी माल मवेशी बेच कर मैं, मेरे डेरे पे आप जाके देख लो, तकरीबन 20 मवेशी थे, जिनमें से मैंने आधे बेच कर वो ये बिल 4 महीने के पिछले पे किया है। तो जी, ये सूरत हाल है। चूंकि आप जिसको छेड़ेंगे तो वो आपको एक नया जो दुख और दर्द है वो देते हुए को बता दें, एक बात हम इन लोगों को बता दें कि हम जट लोग हैं, जमींदार लोग हैं, हम वो लोग हैं जो एक बनने के लिए ना पूरा टब्बर मार देते हैं। हम इनको छोड़कर जाने वाले यहाँ से नहीं है। अभी हम पूरा सब कुछ छोड़ कर आए हैं इधर, या तो यहाँ हमारे मुतालबात हल होंगे या फिर वो होगा दम मस्क कलंदर। इन्होंने सुना है, अभी हम करेंगे। जी, ये ज़ाहिर है पुरअमन अपना एहतजाज जो है वो यहाँ पर जारी रखेंगे, तो हुकूमत को होश के नाखन लेने पड़ेंगे।
اور حکومت کو عملی اقدامات کریں گے. اگر رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف اور شریف خاندان اسی طریقے سے عام آدمی کے ساتھ رویہ رکھیں گے تو یقیناً پاکستان پہلے ہی معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر ہے. تو آنے والے دنوں کے اندر کیا اثرات ہوں گے، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.